सेक्शन हो गया था, रिफाइनिंग डिस्कस कर रहे थे। रिफाइनिंग में दोबारा से एक बार जस्ट जोन रिफाइनिंग से बताऊंगी। जोन रिफाइनिंग मैंने कल किसने पूछा भी था, शायद पूर्वांशी ने, कि इट इज फॉर हाईली प्योर मेटल्स एंड एनिमल्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एटसेट्रा व्हिच आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स. It is based on the principle that the impurities are more soluble in the molten state than the other of the solid metal से. तो जैसे जैसे अपन एक मूविंग सर्कुलर रोलर है, वो आगे पास होगा, मेटल मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, impurities also comes in the molten metal and remaining पीछे वाला जो बैक पोर्शन है, it is solidified and we get pure metal. सेकेंड था वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड इन वेपर फेज रिफाइनिंग मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है सबके लिए, फॉर एवरी ईयर इसमें से आता है. इस बार भी जैसे मैंने कहा एक सेट में आया था व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन एंड इन रिफाइनिंग, एंड सेकेंड वाला आया था व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब दो सेट में एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में से दो सेट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ले लिए एग्जामिनर ने. तो यहाँ पे ये था मॉन प्रोसेस, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, first intermediate volatile compound is formed. What is the principle? It forms intermediate volatile compound, then higher heating impurity is left behind, and on higher heating carbon monoxide वापस vaporize हो जाएगी and it gets only pure nickel. Same way von Oracle process. आदित्य समझ में आ गया था कल? आदित्य? Yes. Next is when we react zirconium, hafnium with iodine at lower temperature, that is 870, it forms ZrI4, zirconium, hafnium कुछ जो भी लेंगे, and at higher temperature again zirconium and iodine release हो जाएगा, pure zirconium obtain होगा. Now next method जो है वो है chromatography method. Chromatography method जो है already अपन ने 11th में discuss किया था. In chromatographic method is based on, ये absorption ही है बेटा, ये adsorption है, थोड़ा सा correction कर लेना, AD है ये जब भी नोट्स लिखोगे तो. दिस इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन? दैट इज सिर्फ सरफेस पे होगा. अगेन सेम दो चीजें होंगी, वन इज एड्सॉर्बेंट एंड सेकंड वन इज, एक तो एड्सॉर्बेंट होगा और एक एड्सॉर्बेट होगा. एड्सॉर्बेंट कौन सा होगा? जो कि हम ले रहे हैं, जिसको कि हमें सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल 11th अगर ध्यान हो तो एक कॉलम है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इन दिस वी एड silica gel or alumina which are act as adsorbent. Adsorbent होगा. And now we add this is the stationary phase. Now we add mixture of compound or metal in which impurities are present. We dissolve this in suitable solvent. Then we add ऊपर से डालते जाएंगे, and जो जल्दी जितना ज्यादा adsorb होगा, it means which is less soluble. Substance which is less soluble in solvent are get more easily absorbed, क्योंकि कम soluble है जल्दी से separate होगा, ज्यादा soluble है सबसे देर से separate होगा. Pure solvent is poured slowly at the top of the column. As the solvent pass through the dissolved mixture, adsorb in the top layer and flow down. Those which adsorbed move more rapidly than the more strongly adsorbed ones. मैंने बताया था जो जितनी जल्दी adsorb होगा इसका मतलब है वो उतना कम soluble है. Now next topic is hydrometallurgy. हमने कल पढ़ा था pyrometallurgy, smelting, ये कुछ चीजें बताई थी. Smelting means अगर आप कोक मिला रहे हैं, pyrometallurgy on heating, hydrometallurgy with water. Certain metals like Ag and Au. Why Ag and Au? They are noble metals. ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं बेटा. 11th की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी, हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट आ जाता है इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, एंड देन उसके बाद आता है Ag, कॉपर, Ag, Au, Pt, Pd. तो इनमें से किसी को भी आपको अगर रिफाइन करना है, रिफाइनिंग करवानी है, तो हम क्या लेते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी. Ag and Au are extracted by dissolving the some suitable reagent and then by treatment of more electropositive element. More electropositive कुछ भी ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, जिंक is more suitable है. Now next यहाँ तक हो गया है. Now next very important topic आ गया है अब, thermochemical principle of metallurgy. इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, thermochemical principle of metallurgy को. Thermochemical means thermodynamics, and we know that thermodynamics basically सबसे universal जो एक formula है, it is del G is equals to delta H minus T delta S. For spontaneous process, del G
should be negative. कैसा होना चाहिए? del G negative होना चाहिए. Now यहाँ पे अगर अपन देखते हैं del H means enthalpy, T temperature, S is entropy. Now thermodynamics helps for the selection of most suitable reducing agent during metallurgy process. ये एक बार बेटा आप बुक में देखना, बुक में आपको बहुत अच्छा नहीं समझ में आएगा, पर फिर भी एक बार बुक को रीड कर देना. उसके बाद जब भी आप लोग, मैं ये शेयर करूंगी नोट्स, तो ये शेयर आप लोग, ये नोट्स को आप लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत इजी वे है. आप लोगों के हर बार ये बोलती हूँ कि लर्न करने का इजीएस्ट वे है ये वाले नोट्स. सो thermodynamics helps for the selection of most suitable reducing agent during metallurgical process. It can also predict the optimum temperature at which the reduction can occur. मतलब कौन सा टेम्परेचर सुटेबल होगा. फर्स्ट अपन अगर इस फॉर्मूले को देखें, डेल्टा एस क्या चीज है? एंट्रोपी चेंज है. डेल जी शुड बी नेगेटिव होना चाहिए. गिव्स फ्री एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन. आपको फ्रॉम मेटल ऑक्साइड वी रिक्वायर मेटल, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड वी रिक्वायर मेटल. इट मींस डेल जी शुड बी नेगेटिव होगा, तभी तो ये स्पॉन्टेनियस होगा. आपको मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल. रिएक्शन कब फिजिबल होगी? व्हेन डेल जी नेगेटिव होना चाहिए. अब डेल जी को नेगेटिव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एस डेल्टा एस डेल एच कैसा चाहिए होगा? इधर डेल एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, देन ऑलवेज डेल जी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. बट इफ अगर ऐसा नहीं होता, इफ सपोज डेल एस पॉजिटिव है, डेल एस नेगेटिव है, then T delta S is positive. If delta S, that is entropy change, is 0 or less, then T delta S becomes positive and delta H negative. In this case, delta H, that is minus delta S, should be greater than T delta S. ये ध्यान रखना बेटा कि अगर delta S exothermic process है और T delta S positive हो गया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपका डेल्टा एच की वैल्यू इज हायर होनी चाहिए. अगर ये हायर नहीं होगी तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द feasibility of any reaction at any temperature. The value of del G must be negative. ये हमने सरफेस में भी यही एक्सप्लेनेशन लिया था. del G also related with equilibrium constant. Greater the negative value of del G, more spontaneous is the reaction. यहाँ पे देखो, मैं एक रिएक्शन है आप लोगों के लिए. The reducing agent forms its oxide when the metal oxide is reduced. Metal oxide converts into metal and oxygen. In this case, second reaction is carbon reacts with half oxygen. This if half oxygen is from first equation, then it gives carbon monoxide. This reaction helps at low temperature. साइड में मैंने low temperature लिख रखा है. This reaction is held at low temperature. अगर low temperature है तो it gives carbon monoxide. और अगर high temperature है, ज्यादा temperature पे feasible हो रही है reaction. High temperature कब होगा? When del H is positive and delta S, so minus T delta S कैसा चाहिए होगा अपने को? Higher चाहिए होगी value. Then more high temperature, higher oxygen should be required and it converts into CO2. This is the most key point for important आप लोगों के लिए. Now if two reactions are put together, कौन से दो reactions? First with second, इनके साथ भी अगर negative value आ जाएगी, if two reactions put together in a system and the net del G is negative, then the overall reaction is spontaneous and they are called the coupling reaction. Yes, coupling reaction. ये coupling reaction और amines का coupling reaction अलग है बेटा. आप ये ध्यान रखना कि आपको coupling reaction एग्जाम में कौन से में से पूछ रहे हैं. अगर coupling reaction from amine तो diazotization process होगा. And if coupling reaction from is metallurgy, then ये किस में से होगा अपने? ये coupling reaction means when first reaction is metal oxide converts into metal and oxygen, and in second step oxygen reacts with carbon, either carbon or carbon monoxide, then we obtain carbon monoxide and carbon dioxide respectively. And these reactions can be explained by Ellingham diagram. Ellingham diagram मैंने कल कहा था अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको जस्ट मैंने उसको हट गया है सिलेबस से, पर फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को एकदम से ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को ऐसा लगे कि बिल्कुल नया कुछ भी है, क्या चीज है. तो जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखे हैं इसको समझाने के लिए. एलिंगम डायग्राम को इतना सा आप लोग पढ़ लेना. इट कंसिस्ट ऑफ ग्राफ
which represents the variation of del G naught with temperature of the formation. मतलब एलिंगम डायग्राम मींस क्या चीज है आपके ऑल द बुक में ग्राफ दे रखा है पर अपने को ग्राफ की जरूरत ही नहीं है. इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन del G naught आप ऊपर वाले से कर लोगे versus temperature. The concept of this diagram is that any metal oxide with lower value of del G naught is more stable than metal oxide with higher del G naught value. ये next है. The concept of diagram क्या चीज है इसमें is that metal oxide with lower value of del G naught. Lower value मतलब क्या हो जाएगी? Negative value और is more stable than metal oxide with higher del G naught. मतलब अगर lower value है तो metal oxide जो है वो stable हो गया. Now this means that metal oxide placed higher in the, ये आगे अपने को कोई जरूरत नहीं है. just आपको सिर्फ एक सेंटेंस फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको लर्न रखना है कि एलिंगम डायग्राम इज प्लॉटेड इन बिटवीन del G naught versus T and lower temperature, that is negative value should be required. मैंने कल ये कहा था कि एक हमेशा जनरली ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन एनी मेटल X. फॉर एग्जांपल 4 मेटल है आप लोगों के इसमें, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर. 4 एक्सट्रैक्शन आप लोगों के सिलेबस में है बेटा 12th में. फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन जिंक एंड देन कॉपर. हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर? So for this purpose you should be right from starting, that is from concentration से. और मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली मतलब ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ही ना पड़े बुक में पेजेस पलट के, बिल्कुल क्लियरली मैंने यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे हो स्क्रीन पे. फर्स्ट आयरन लिया है, आता है अगर 3 मार्क क्वेश्चन तो सेम इसी तरह से पैटर्न होगा आप लोगों का बेटा. और इज मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमेटाइट Fe2O3. First step is concentration because iron means magnetic separation होगा, gravity separation for silica impurities, then electromagnetic separation for iron, and for sulfide it is fourth flotation for sulfide ore. मान लो अगर मान लो हेमेटाइट है मैग्नेटाइट है तब तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन लोगे, पर आपको पता नहीं है कि इसमें सल्फाइड ओर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं. सो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली 1 और 2 मार्क्स है. ग्रेविटी सेपरेशन फॉर सिलिका इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन as iron is magnetic in nature, and fourth flotation for sulfide ore. Now calcination means absence of air, Fe2O3.3H2O, then heat करोगे. और अगर मान लो आपके पास फॉर्मूले में आप 3H2O आपको याद नहीं है, छोटे छोटे से की पॉइंट बता रही हूँ, तो आप XH2O लिख देना, इजी पार्ट है, लिखो ही ना, उससे अच्छा एक्स फॉर्म में लिख देना, गलत नहीं होता. 2Fe2O3.3H2O and gives 2Fe2O3 plus 3H2O. कार्बोनेट भी कैल्सिनेशन था. when we heat calcination, that is in absence of air, low temperature पे it gives FeO plus CO2. मतलब अपना फर्स्ट स्टेप था concentration, सेकेंड हो गया calcination. calcination में क्या हुआ? now we obtain iron oxide, मतलब और जो है वो iron फॉर्म में आ गया है. now from oxide we obtain impure metal, from this we obtain impure metal, and this is smelting. मैंने कहा था कि हम क्या लेते हैं, अगर कोक ले रहे हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, देन वर्ड जो है वो स्मेल्टिंग यूज करते हैं. इन ब्लास्ट फर्नेस कोक लाइमस्टोन और इज हीटेड. यहाँ पे मैंने ब्लास्ट फर्नेस ड्रॉ नहीं किया है बेटा. सो आप लोगों को अगर बुक है आप लोगों के पास तो बुक में आपके ब्लास्ट फर्नेस दिया हुआ है. ऑल्दो डायग्राम ड्रॉ करना कभी नहीं आता, सिर्फ हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस का और हेबर्स प्रोसेस के डायग्राम आते हैं, बाकी इन जनरल और कोई ऐसा डायग्राम नहीं आता. मैंने कहा था लैक्टो मोनो और डाइसैक्राइड्स के आते हैं. In blast furnace, coke limestone ore is heated. Okay, this blast furnace is based on cup and cone method. What is the main मतलब है cup and cone का? This is one directional. जैसे एक साइड से अगर जैसे अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक साइड वॉल्व है, बैक साइड नहीं मूव कर सकता. सेम वे अगर ऊपर से आप ओर डाल रहे, ओर कोक लाइमस्टोन डाल रहे हो तो वो वन साइडेड होगा, मतलब नीचे तो आ जाएगा, वापस कोक और वो आप बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब यूनिडायरेक्शनल है वॉल्व जैसा. above 1073 Kelvin del G naught for C2CO is more negative.
यस, ये लाइन तो बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी। टेम्परेचर अगर 1073 नहीं भी लर्न है तो आप हाई टेम्परेचर मेंशन कर लेना, इसलिए बोल रही हूँ टेम्परेचर लर्न करने के लिए फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। 1073, that is del G naught, about 1073 del G naught for C to CO is more negative. It means at high temperature in oxide of iron we add coke. हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा ब्लास्ट फर्नेस में, बहुत हाई, कितना, अबव 1073, और कार्बन क्या करेगा, FeO में से ऑक्सीजन निकाल लेगा और आपके पास इम्प्योर मेटल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? एट हाई टेम्परेचर carbon, when we add carbon as a reducing agent, it reacts with FeO, iron oxide, and forms impure iron and carbon monoxide. क्योंकि देखो एक बहुत easy book में भी नहीं समझ में आएगा बेटा। CO is more negative than formation of ferric oxide. हाँ आदित्य बोलो। मैम ये जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं वो सिंपली ऑक्साइड्स होते हैं ना उनके? इम्प्योर मेटल ऑक्साइड नहीं होंगे बेटा, इम्प्योर मेटल तो मेटल हो जाएंगे। मेटल ऑक्साइड से अपने को जो मेटल मिलता है ना वो इम्प्योर मेटल होता है। थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती है, कुछ अभी आगे डिस्कस करेंगे, कुछ परसेंट उसमें कार्बन होगा, कुछ सिलिका हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने कॉन्सेंट्रेट किया, सेकेंड स्टेप में ओर को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में, और उस सेकेंड पार्ट के ही ए बी पार्ट है, बी पार्ट हो गया फ्रॉम ऑक्साइड टू मेटल। अब जो मेटल मिल रहा है वो 100% प्योर नहीं है, ठीक है, वो रिफाइनिंग से आएगा। आदित्य समझ में आ गया? यस। नाउ सो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है, सो कार्बन कैन रिड्यूस फेरिक ऑक्साइड व्हाइल बिलो 4073, बिलो 4073 बस जस्ट एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। डेल जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO इज मोर नेगेटिव। अब क्या होगा, अब इसीलिए जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस ऐसे पीएच ऐसे होता है, इसमें नीचे से ऊपर जब जाते हैं बॉटम टू टॉप टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। सो इसका मतलब नीचे क्या बना, फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऊपर से आप कुछ भी ऐड कर रहे हो बेटा वो नीचे आ जाएगा, नीचे हाई टेम्परेचर है। देन कार्बन reacts with iron oxide, converts into carbon monoxide, gases are lighter, they goes upside and converts into, reacts with oxygen and converts into CO2 और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वन पैराग्राफ है ये। 10 से at 1073 initially coke reacts with iron oxide, converts FeO or Fe2O3, converts carbon monoxide above temperature as low temperature, carbon monoxide converts into carbon dioxide as del G naught is negative. del G naught वैल्यू तो, del G naught तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव चाहिए अपने को स्पॉन्टेनियस के लिए। सो दिस टेम्परेचर, ओके स्टूडेंट्स, 12th A स्टूडेंट्स के को मैंने ग्रुप में शेयर किया था बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। 12th A में मैंने कर दिया है शेयर, ग्रुप जो ग्रुप है आप लोगों का, आप लोग एक बार देख लें 12th A वाले। सी में भी मैंने, सी में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने सेंड किया ही है। इज मोर नेगेटिव then reduce ferric oxide while below 1073 del G naught for formation of CO2 from CO is more negative. Then formation of Fe2O3, so at this temperature CO is better reducing agent, thus in the blast furnace temperature ranges are different. मतलब अगर नीचे है तो पूरे नीचे क्या होगा, कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोक। इतना याद रखोगे, एट ब्लास्ट फर्नेस लोअर, एट लोअर लेवल हाई टेम्परेचर, सो कोक इज द बेस्ट एंड इन अपर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। Yes. Hot air is blown from the bottom of the furnace and coke is burned to give temperature up to 2200 Kelvin in the lowest part and supplies most of the heat required in this process. मतलब lower part में high temperature हो जाएगा। Above 1073 बोला है ना, जितना high temperature होगा उतनी negative value आ जाएगी, उतना easily reduction process हो जाएगा। The CO and heat moves to upper part of the furnace and it reduces most of the ore Fe2O3, Fe3O4 to FeO due to low temperature. Now यहाँ पे reactions हैं बेटा, मतलब ये reaction जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर temperature range learn रहती हैं तो ठीक है। Low temperature 3 Fe2O3 plus carbon monoxide 2 Fe3O4 plus CO2.
Fe3O4 ले रहे हो, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 फॉर्म हो जाएगी. CaCO3 CaCO3 क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने को? CO. CO, what is the role of CO? CO is flux which releases the impurities. क्या impurities हैं? SiO2 की acidic impurities हैं. ये इस साल बोर्ड क्वेश्चन में आया. What is the role of CaO in the extraction of iron? ये सेम क्वेश्चन है. तो आपको ये दो लाइन आ जाएंगी. बहुत से स्टूडेंट्स ने ये दो लाइन लिख दी हैं. क्या रोल है? CO in iron, SiO2 impurities is present, gangue is acidic, so we add CaO, it forms CaSiO3 slag. That's it. ठीक है? 1 minute स्टूडेंट, इसको जब तक आप रिएक्शन लिख रहे हो. ओके, नाउ यहाँ पे टेम्परेचर रेंज दी हुई है. FeO plus CO, ये पूरा मैंने समझा ही दिया है. Fe plus CO2, C plus CO2 gives twice of CO. FeO plus C, मतलब हाई रेंज पे देख रहे हो क्या है. मतलब बस इतना सा शॉर्ट की पॉइंट क्या है, कट शॉर्ट. लोअर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस at high temperature, carbon is best reducing agent. Carbon monoxide is formed at higher level. Low in blast furnace, temperature is low, and then carbon monoxide is lighter gaseous form में है, upside में जाएगी. Then it reacts with other Fe2O3 और Fe3O4. एक ही करने ना, Fe2O3 करो चाहे कुछ भी करो, और FeO and form CO2. CO2 release हो जाएगी. From blast furnace, Aditya, from blast furnace, impure iron is formed, and this impure obtained. 1 minute, student. Copies all done, all copies completed. Post कर दे group में. Yes. 1 minute स्टूडेंट, वहां से फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा है कॉपीज का सेंटर से. all copies checking completed. Post. Yes, sorry for interruption. Now कोई डाउट है यहाँ तक स्टूडेंट? Okay. Now from blast furnace, Aditya, impure iron is obtained, and this impure iron is known as pig iron. Okay, ये again एक बहुत important है. What is pig iron? तो pig iron means, what is the difference of pig iron and wrought iron? Pig iron is obtained in which 4% carbon and other impurities like Mn, Si, P, etc. are present. So pig iron from, अच्छा, जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है डायग्राम, स्लैग, ये इस तरह से दो लेयर होती है. अपर लेयर, लाइटर लेयर इज स्लैग, which is CaSiO3, which is removed, and then pig iron is formed. In pig iron, amount of carbon को जरूर से याद रख लेना बेटा. ये छोटे छोटे से जस्ट एक छोटे पॉइंट्स हैं. Pig iron converts into, okay, in blast furnace 4% iron. Pig iron converts into cast iron. चार टाइप के आयरन होते हैं. First is pig iron, which is impure, then cast iron, and third one is wrought iron. Wrought iron जो है वो purest form है, और wrought iron के जो furnitures वगैरह बनते हैं अपने. Pig iron converts into cast iron by melting it with scrap, Fe and carbon, and it contains 3% carbon. अब थोड़ा कम हो गया, percent of carbon थोड़ी कम हो गई, and it is very hard and brittle. ये जो रोड साइड के पाइप्स जो होते हैं, लाइट के जो होते हैं पिलर्स, वो पिलर्स किसके फॉर्म होते हैं? कास्ट आयरन के. बहुत हार्ड होते हैं, बट दे आर ब्रिटल. So pig iron converts into cast iron by melting it with scrap iron and carbon, and it contains 3% carbon. It is a very hard and brittle. Now next, cast iron converts into wrought iron. Cast iron is heated in a furnace which is lined by Fe2O3. अब हम किस में कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. Cast iron is heated in a furnace which is heated with Fe2O3, मतलब लाइन किया हुआ Fe2O3 आयरन का ही. So the impurities
of iron is easily oxidized and wrought iron is formed. अब क्या होगा, Fe2O3 है, again Fe2O3 जो है react करेगा कार्बन के साथ and it converts into iron and carbon monoxide. What is the role of carbon monoxide? Carbon monoxide then again converts into Fe2O3. अगर कुछ amount में Fe2O3 है भी तो उसको किस में convert कर देगा, Fe2O3 और FeO को iron में convert कर देगा and it is a malleable and purest form of iron. Just it's a मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता. ये अपना आयरन का था जिससे कि प्योर आयरन ऑब्टेन हो गया. नाउ इन द सेम वे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. फिर मैंने उसी तरह से लिखा है कि आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है. ये नोट्स बिल्कुल सेम वैसे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा. फर्स्ट अगर आता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर, नाम देते हैं तो वेल एंड गुड, नाम नहीं देते तो ore is bauxite Al2O3.XH2O. Then concentration by leaching impurities like MnO2 SiO2 are removed by leaching. Leaching के बाद कॉमा आएगा. लीचिंग वाले प्रोसेस की अब कोई जरूरत नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, अगर 1 और 2 मार्क्स का है तब तो आप ज्यादा डिटेल मत करना. MnO2 and SiO2 are removed. Now next is electrolysis. This is a very important method. इधर सिर्फ हॉल हेराल्ड प्रोसेस भी आ जाता है. एक्सप्लेन हॉल हेराल्ड प्रोसेस. और अभी थोड़ी देर बाद एक चीज शेयर करूंगी अभी आप लोगों के साथ. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर एल्यूमिना बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस. एल्यूमिना इज मिक्स्ड विद, इस लाइन के लिए शेयर कर रही हूँ, ये फर्स्ट लाइन जो है, Na3AlF6 cryolite and fluorspar CaF2 to decrease the melting point and increase conductivity. ये सेंटेंस पता है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में है. मुझे याद नहीं है किस साल, शायद 2016 या 15 में किसी साल ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट. अब उसमें 4 ऑप्शन थे. जेई में ये इसके लिए बोनस मार्क्स मिला था. क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने क्या दिया था कि इट इज यूज फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज कंडक्टिविटी. दोनों दे रखे हैं, Na3AlF6 एंड CaF2. उन 4 ऑप्शन में शायद ये दोनों बोथ वाला ऑप्शन नहीं था. जो तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा. बेसिकली एक बार लर्न कर लो, पढ़ लो, और मेन सारे आपको फिर नोट्स में मिल जाएंगे. ऑल्दो मैंने उसी तरह से ही प्रिपेयर किया है. द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन एन आयरन बॉक्स. एक स्टील कंटेनर होता है, बुक में डायग्राम है. आयरन बॉक्स लाइंड इनसाइड कार्बन विच एक्ट एज कैथोड. इट इज अ कार्बन स्टील बॉक्स. लाइनिंग किसकी है? कार्बन की लाइनिंग है. कार्बन लाइनिंग एक्ट एज कैथोड. मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा. आदित्य क्लियर? कुणाल? नाउ डिप करा हुआ है, उसमें एनोड है, कार्बन ग्रेफाइट एनोड विच आर अटैच्ड विद द, विच इज डिप ऑन इन द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब क्या हुआ, एनोड और कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन. Lining from steel container, lining is carbon lining which act as cathode, and anode are in rod form and which are dipped in electrolyte. Now electrolysis करेंगे. Oxygen is liberated. Oxygen कहाँ liberate होगी? Simply anode पे liberate होगी. अब क्या होता है? Oxygen reacts with carbon rod and form CO and CO2. Reaction होगी and धीरे 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 ये जो कार्बन एनोड था वो क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है. तो कुछ टाइम के बाद इसको चेंज करना पड़ता है अपने को, किसको? एनोड को, बिकॉज वो रिएक्शन होके CO and CO2. एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज. सो इसको पूरे एक डार्क कार्बन से कोटिंग कर देते हैं, डार्क कोटिंग कर देते हैं. अदरवाइज ये हीट जो है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. The electrolysis is carried out in an iron box lined inside carbon which acts as cathode. The anode is made up of carbon rods which is dipped in the electrolyte. Oxygen is liberated at anode and attacks the carbon rod forming CO and CO2. When the concentration of the electrolyte decreases, the resistance of the cell, this is important line again, when the concentration of electrolyte decrease हो जाएगा तब क्या होगा? Electrolysis process नहीं हो पाएगा क्योंकि अब खत्म हो गया है. तो एक बजर होता है, बल्ब वो क्लिक करने लगता है and the resistance of the cell increases. At this stage more alumina is added and from this 99.9% pure aluminium is obtained. Reaction है बेटा यहाँ पे. Al2O3 gives twice Al plus 3 plus 3O minus 2. Cathode 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बैलेंस किया हुआ है.
heavier than electrolyte sinks to the bottom. और मतलब ये लाइन आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए. एल्यूमिनियम क्या होता है, ऊपर तो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, और एल्यूमिनियम हैवियर है तो वो नीचे रह जाता है बॉटम पे, और वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. एनोड पे रिएक्शन हुई और C plus O2 gives CO2 बन जाएगा, तो we add replace एनोड साइमल्टेनियसली. काफी बीच बीच में हमको हटाना पड़ता है. नाउ थर्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. मैंने कहा था 4 एक्सट्रैक्शन है. फर्स्ट पड़ा आयरन, then aluminium. Now third one is copper. Ore of copper is copper pyrite is CuFeS2, copper glance Cu2S, cupride red Cu2O. तीनों दिए हैं बेटा. अब इसमें दो मेथड दिए हैं मैंने. फर्स्ट मेथड है कॉपर फ्रॉम कॉपर ओर, क्यूप्रस ऑक्साइड. कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड अगर होगा तो फ्लोटेशन, सल्फाइड के लिए था फ्रूट फ्लोटेशन. देन रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड देन स्मेल्टिंग. CO2O कर्व्स लिव्स ऑलमोस्ट एट द टॉप. मतलब कॉपर क्या है, नोबल मेटल है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है. तो तुम चाहे कार्बन ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, बोथ आर सुटेबल फॉर obtaining copper from copper oxide. CO2 curves lies almost at the top from the formation of CO or CO2 by coke is best reducing agent. Now next, अभी यही चल रहा है. सेकेंड वाला, iron has great affinity for oxygen than copper, so it is essential to convert whole iron sulfide into iron. ये अगर मान लो आयरन इम्प्योरिटीज है, आपने कहीं से और एक्सट्रैक्ट किया विथ कॉपर, अगर आयरन सल्फाइड भी प्रेजेंट है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज आयरन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कॉपर. सिंपल स्टेटमेंट है. So it is essential to convert whole iron sulfide into iron oxide and it forms slag with SiO2. मतलब अब यहाँ पे impurity को हम कैसे रिमूव कर रहे हैं, एज अ slag. FeS plus Cu2O, FeO converts होगा FeS plus O2. अगेन दोनों में से और कोई सा भी प्रोसेस ले सकते हो. Either FeS reacts with Cu2O or FeS reacts with oxygen. We get FeO. FeO as a impurity है यहाँ पे, it reacts with SiO2, converts into FeSiO3 slag. एंड लास्ट टू रिएक्शंस जो हैं वो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस हैं. Cu2S plus 3O2 gives Cu2O and SO2 gas release हो जाएगी. This reaction is held on river battery furnace. Now last is Cu2O when treated with Cu, it gives copper. For blast furnace, yes, again from blast furnace copper metal is obtained and it is transferred to silica line converter. Hence, all iron and copper sulfide converts to oxide and further by self reduction हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 98%. ये किससे था, कौन सा मेथड था, ये वाला क्यूप्रस ऑक्साइड से. हमने क्यूप्रस ऑक्साइड और from क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O or from Cu2S we get 98% pure copper. Now second method is extraction of copper from low grade ores. ये तो अच्छा ग्रेड था. मान लो कई जगह से लो ग्रेड ओर्स आ रहे हैं और वहां पे भी कॉपर है, तो यहाँ पे क्या है, लीचिंग ऑफ ओर बाय सुटेबल एसिड लाइक H2SO4. बिकॉज E नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, so we can use H2SO4 or iron or any reactive metal. Cu plus 2 ions present in solution is treated by either scrap iron or by hydrogen. Therefore, Cu plus 2 ions are reduced to Cu metal. तुम Fe ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, पर मेटल एक्टिविटी सीरीज जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब अपन उसको अच्छे से, मैं पूरी टेबल को वो लर्न करेंगे, ली के बाबा काका ने. तो अगर Fe और जिंक है तो कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा, जिसकी मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी बेटा. तो वो मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू आप कैसे याद करोगे, थ्रू दिस टेबल. वो जो टेबल है उस टेबल में आपको नेगेटिव वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है. मैं हमेशा बोलती हूँ वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका सीक्वेंस क्लास में लर्न करवा दूंगी. और बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हर जगह काम में आएगा, डी ब्लॉक में भी. तो Cu plus 2 plus Fe gives Cu plus Fe plus 2. और अगर हाइड्रोजन ले रहे हो, हाइड्रोजन भी सुटेबल है इसके लिए, तो so we get copper. E naught for the above two reactions are positive, hence del G naught has negative values. Okay.
एक 11th में आपने पढ़ा था बेटा डेल जी वाले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। याद है हल्का सा भी थर्मोडायनेमिक्स में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे 96500 कूलम एंड ई नॉट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इन तीनों से डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो नेगेटिव डेल जी नॉट के लिए आपको क्या चाहिएगा, ई नॉट कैसा चाहिए, पॉजिटिव। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, टू गेट डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फेराडे, ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So as del G naught should be negative for spontaneous process, so for this process del G should be negative and condition क्या होनी चाहिए, E naught कैसा होना चाहिए, positive होना चाहिए. If E naught is positive, then only copper ion converts into copper. ये assertion और reason में ऐसे वाले questions में गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो कौन सा सही है, यहाँ पे कैसा चाहिएगा अपने को, E naught कैसा चाहिएगा, positive. For this reaction E naught should be positive as del G naught negative for spontaneous process or for conversion of copper ion to copper. Now last one is extraction of zinc. चार थे बेटा आप लोगों के extraction, और वापस लिखा हुआ है मैंने, सारे और थे समराइज किए हैं, zinc blend ZnS, zincite ZnO, calamine ZnCO3. Zinc is extracted from its ore by two methods. First one is reduction and second method is electrolytic process. फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन, कंसंट्रेशन किया, क्योंकि S है ना, ZnS है, ZnS है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फ्रूट फ्लोटेशन, एंड ZnCO3 इन ग्रेविटी सेपरेशन, ZnCO3 में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ZnS रिमूव हो गया, ZnO आ जाएगा. नाउ रिडक्शन above 1270 Kelvin, that is at high temperature. At high temperature पे क्या था, कार्बन, एंड लो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड. अभी आयरन में समझाया था मैंने. तो हाई टेम्परेचर कर दो, डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट फॉर्म्स Zn. सो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके याद रख लेना, एट हाई टेम्परेचर कार्बन इज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट टू गेट डेल जी नेगेटिव, एंड एट लो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, अपना डेलियन सेल जो था 11th में, डेनियल सेल ध्यान है इलेक्ट्रोलाइटिक्स में, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जिंक सॉल्यूशन में आ रहा था, रिडॉक्स चैप्टर में. याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी. तीन मेटलर्जी आ गई हैं. फर्स्ट इज पायरोमेटलर्जी, दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर. सेकेंड वन हाइड्रोमेटलर्जी based on water, H2O, hydrogen. Third one, electrometallurgy, that is electricity. Yes. Now next is electrometallurgy. The process of extraction of metals by electrolysis of their fused salt is called electrometallurgy. कैसे होंगे रिडक्शन, वही सेम, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड पे रिडक्शन होगा. The suitable selection of the second point is very important. The suitable selection of the electrode is done on the basis of the reactivity of the matter. That is reactivity series. Okay, that is reactivity series. Reactivity series पे based होगा, और reactivity series वही है, ली के बाबा काका ने, मैं एक बार जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी या किसी भी दिन एक बार डी ब्लॉक से पहले इसको लर्न करवा दूंगी. और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, मोर नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन चाहिए होगा. द सुटेबल सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज अप्लाइड टू कैरी आउट रिडक्शन ऑफ मॉल्टन सॉल्ट्स. अगर अपन वाटर ले लेंगे, एक्वस ले लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका बेस फॉर्म हो जाता है. The process of electrolysis is applied to carry out reduction of molten salts, and del G naught is equals to minus NF E naught, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए. Yes. एक बात और बेटा, अगर आप टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस के लिए अपन ने पढ़ा आयरन जिंक, इनके लिए
तो आप लोग डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, याद कर रखना। कब लगेगा डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस? इफ हीटिंग प्रोसेस आ रहा है, हीट कर रहे हैं, ठीक है, एंथैल्पी रिलीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, सारा का सारा जीरो आ जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। डेल जी नेगेटिव चाहिए, ई नॉट पॉजिटिव चाहिए, therefore E naught should be positive for spontaneous reaction, and because more reactive चाहिए values and the less reactive metals can be displaced by, ये मैंने हमेशा कहा है, more reactive metals and non-metal displaces less reactive metals and non-metals from their salt solution। यहाँ तक अब टाइम ओवर हो गया है, सो कल से अपन डिस्कस करेंगे